हुई वो पढ़ देता हूँ और फिर आज का ऑर्डर. The Attorney General of Pakistan has concluded his submissions in support of the constitutionality of the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, within brackets the Act. Learned Mr. Hassan Irfan Khan for the petitioner and constitution petition number 19/2023. Learned Mr. Mohammad Ikram Chaudhary for the constitution petition 20/23. And learned Mr. Abid S. Zubairi, President of the Supreme Court Bar Association, exercised their right of reply and were heard. These petitions were heard by the full court on 18th September, 3rd, 9th, 10th, and 10th October 2023, and are today disposed of in terms of the order of the court. And this has been signed by all of us. And now I shall read the order of the court. For reasons to be recorded later, these petitions are decided as under. And if you don't get it, it's all right. We'll have it uplinked on the website today. Subject to paras 2 and 3 below, by a majority of 10 to 5, within parentheses, Justice Ijazul Ehsan, Justice Munib Akhtar, Justice Sayyid Mazahir Ali Akbar Naqvi, Justice Aisha A. Malik, and Justice Shahid Wahid dissenting, bracket close, the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. Paragraph 2. By a majority of 9 to 6, Justice Ijazul Ehsan, Justice Munib Akhtar, Justice Yahya Afridi, Justice Sayyid Mazahir Ali Akbar Naqvi, Justice Aisha A. Malik, and Justice Shahid Wahid dissenting, bracket closed, subsection 1 of section 5 of the Act, within brackets, granting a right of appeal prospectively, is declared to be in accordance with the Constitution, and to this extent the petitions are dismissed. Paragraph 3. By a majority of 8 to 7, within bracket Chief Justice Qazi Faiz Isa, Justice Sardar Tariq Masood, Justice Sayyid Mansoor Ali Shah, Justice Aminuddin Khan, Justice Jamal Khan Mandokhel, Justice Athar Minella, and Justice Musarrat Hilali dissenting, subsection 2 of section 5 of the Act, within brackets, granting a right of appeal retrospectively, is declared to be ultra vires the Constitution, and to this extent the petitions are allowed. So I hope that clarifies the matter, and we try to do it in the shortest possible time, and you have the benefit of the order of the court. And now we will take time to write the detailed reasons. Once again, ladies and gentlemen, thank you very much. And members of the press, thank you to them as well from all of us, hopefully for accurate reporting. Very grateful. Now well-deserved rest I will give. Okay. Thank you. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला सुनाया गया. फैसला 10-5 के तनासुब से दिया गया है. फैसला 10-5 के तनासुब से दिया गया. कुछ देर पहले समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया और दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं. फैसला 10-5 के तनासुब से दिया गया है. फैसला जो कि 10-5 के तनासुब से दिया गया और दरख्वास्तें खारिज कर दी गई. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत, जिसका फैसला कुछ देर पहले महफूज किया गया, समाअत मुकम्मल होने पर और कहा गया कि कुछ देर बाद सुनाया जाएगा, जो कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से भी सुनाया गया और 10 जजेस का अक्सरती फैसला है. चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया और फैसला 10-5 के तनासुब से दिया गया है और दरख्वास्तें खारिज कर दी गई. अहम समाअत, अहम फैसला, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं. समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया, जो कि सुना दिया गया है और ये फैसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी गई. फैसला 10-5 के तनासुब से दिया गया है. जस्टिस काजी फैज ईसा ने यह फैसला पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं और फैसला
10-5 के तनासुब से सुनाया गया है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से ये फैसला सुनाया गया। कुछ देर पहले तमाम वकला, तमाम फ्रीकैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर इस केस के फैसले को महफूज किया गया था और कहा गया था कि कुछ देर बाद सुनाया जाएगा, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने इसका फैसला सुना दिया है। 10-5 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं। फैसला 10-5 के तनासुब से दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिस पर फुल कोर्ट समाअत जारी रही और बहुत दिनों तक दलाइल भी दिए गए, आज समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया था। फुल कोर्ट ने ये समाअत की थी जिसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया और ये फैसला 5-10 के तनासुब से सुनाया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें भी खारिज कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 10-5 की अक्सरियत से ये फैसला दिया है। बेंच के 5 जजेस ने इख्तलाफी नोट दिया है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फैसला सुनाते हुए ये बताया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 10-5 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया है। फुल कोर्ट समाअत हुई जिस पर बहुत दिनों तक दलाइल दिए गए, समाअतें जारी रहीं। बिलाखिर आज ये तमाम मामला मुकम्मल होने के बाद, समाअत मुकम्मल होने के बाद, दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया, जिसे जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से सुनाया गया और बताया गया कि बेंच के 5 जजेस की जानिब से नोट भी लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने फैसले से इख्तलाफ किया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी गई। जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी जहांज़ेब, बताइएगा फैसले में क्या कुछ कहा गया है? जी देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो इसका शॉर्ट ऑर्डर है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का, वो सुना दिया गया है। जो शॉर्ट ऑर्डर ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने सुनाया है, इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जो दायर दरखास्तें हैं, ये 10 जजों की अक्सरियत से इन दरखास्तों को खारिज किया गया है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो है उसको बहाल कर दिया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में आर्टिकल 184 की शिक 3 के फैसले के खिलाफ जो अपील का हक दिया गया था, उस अपील वाले के हक के मामले पे जो रेशो आई है, जो अक्सरियती फैसला है, वो 9-6 का है। यानी 9 जजेस ने अपील का हक देने का अक्सरियती फैसला किया है, 6 जजेस ने इसकी मुखालफत की है। अब एक अहम सवाल ये भी था कि क्या इस कानून का इतलाक माजी से हो सकता है या नहीं। तो इस मामले के ऊपर, माजी से इतलाक के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस शिक को जो है वो दुरुस्त तस्लीम नहीं किया। वो जजेस जिन्होंने माजी से इतलाक के हवाले से जो हक में व्यू दिया है, उसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा हैं, जस्टिस मंजूर अली शाह हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस काजी यमीन हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं। तो 8 जजेस जो हैं उन्होंने अक्सरियत से इस अपील का इतलाक माजी से करने के मामले के ऊपर जो है वो इस कानून को जो है, इस शिक को जो है वो ये कहा है कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। बहुत अहम ये फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 191 के तहत जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस तरह से रेगुलेट करना है, उस रेगुलेट करने के इख्तियार को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तस्लीम किया है और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट की जो कानून साजी है उसके जरिए से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को रेगुलेट कर सकती है, उनको रेगुलेट करने का ये हक हासिल है। अक्सरियती फैसला जो 10 जजेस ने दिया है, 10 जजेस का अक्सरियती फैसला जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को दुरुस्त करार देते हुए उस कानून को बहाल कर दिया है और इस कानून के खिलाफ दायर तमाम दरखास्तों को खारिज कर दिया है। 9 जजेस ने अपील का हक देने के ऊपर अक्सरियती फैसला किया है और 6 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने अपील का हक देने के मामले के ऊपर इख्तलाफ किया है। लेकिन इस अपील का इतलाक जो माजी से किया गया था, उस मामले के ऊपर जो है वो इत्तेफाक जो अक्सरियती राय नहीं मिल सकती, अक्सरियती फैसला नहीं हो सका, तो इसलिए अपील का हक
کا ماضی سے اطلاق کرنے کی جو شک تھی اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کالعدم قرار دیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ تھوڑی ہی دیر میں یہ جو آرڈر ہے یہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ آویزاں کر دیا جائے گا. جی آویزاں کچھ دیر بعد کر دیا جائے گا. اچھا جہاں سے آج دن بھر سماعت کے دوران جب دلائل دیے گئے، جب ریمارک سامنے آئے جج صاحبان کی جانب سے، تو کیا کیا بحث کی گئی؟ دیکھیں بنیادی بحث آج اٹارنی جنرل فار پاکستان کی جانب سے کی گئی. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اپیل کا حق کہ سپریم پارلیمنٹ کو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بنا کر چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار حاصل ہے. ہم نے دیکھا کہ جب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا منصب سنبھالا ہے اس وقت سے یہ طے کیا گیا تھا کہ سب سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو دیگر امور ہیں عدالتی، بالخصوص آرٹیکل 184(3) کے تحت جو کیسز پینڈنگ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی